pedigree chart. If you remember, what we discussed yesterday was all the signs and symbols that we use in order to analyze or prepare a pedigree chart. For example, if you just recall what an empty circle represents. An empty circle represents a female who is unaffected, right? Just try to recall how we draw a structure for a carrier male. We will draw a half-filled square, right? We discuss the things like consanguineous marriage or mating, where we show the individuals where we connect a male and female with two horizontal lines instead of one, because one horizontal line, when is there in between male and female, it represents a normal mating or a random mating, right? But in consanguineous mating, what is different is that there is a mating between close relatives, so we represent it by two horizontal lines. So these are just examples. We discussed all different types of symbols that can be used in pedigree analysis, right? Now the next thing is what kind of traits or what kind of characters can be studied using pedigree charts. So you already know that in case of humans there are two types of chromosomes. Think, which two types? Yes, autosomes and sex chromosomes, right? In case of autosomes, there are those genes which are responsible for different characters but not for determining the sex of that individual. While sex chromosomes are specifically those chromosomes on the basis of which a sex of an individual is decided, right? As far as human is concerned, there are two types of sex chromosomes, that is X and Y, where a combination of XX is responsible for female progeny, while combination of XY is responsible for male progeny, right? So there can be therefore 4 or 5 types of traits that can be discussed by using pedigree chart. First, if you think of autosomes, then genes present on autosomes are called autosomal genes, and you know that there are 22 pairs of autosomes. Those autosomal genes can be dominant and can be recessive. So for autosomes, there are two types of traits, autosomal dominant and autosomal recessive. Similarly, for gene present on X chromosome, you use the term sex-linked genes, right? Sex-linked genes are also called X-linked genes. There are also two types, dominant and recessive, that is sex-linked dominant and sex-linked recessive. While Y chromosome is only present in males, there is no probability or possibility for presence of Y chromosome on or in females. That's why there is no question of dominant and recessive. That's why Y-linked genes are simply Y-linked genes, as they are present only in males. So if you recount, there are total 5 types of traits or 5 types of characters that can be studied by using pedigree analysis, that is autosomal dominant, autosomal recessive, sex-linked dominant, sex-linked recessive and Y-linked, of which how you will identify that a given pedigree chart is of autosomal dominant, or how you will identify whether a given pedigree chart is of sex-linked dominant or recessive. So simple, we should know some basic rules or basic set of things which are applicable to the particular trait, and if we see those things or those facts in a given pedigree, we can easily identify whether a given pedigree is of this type of trait or that type of trait. Like for instance, we are starting with autosomal dominant trait. Is it okay? Autosomal dominant trait में हमको क्या दिखता है?
कि यहाँ पे हमको ये समझना है कि अगर कोई पेडिग्री हमें दी गई है तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की है या नहीं, ये हम कैसे पहचानें? इज इट ओके? तो अब देखो कि आपको अगर गिवन पेडिग्री में ये चीजें दिखती है तो हम समझेंगे कि ये जो गिवन पेडिग्री है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की है। जैसे कि उसमें हमें दिखेगा कि ट्रेट शुड नॉट स्किप जनरेशन, मतलब हर जनरेशन में अगर ये मेल है और ये फीमेल, इसमें फीमेल अफेक्टेड है तो ये हुई नेक्स्ट जनरेशन, इसमें भी हमको अफेक्टेड इंडिविजुअल्स दिखेंगे, ये हुई नेक्स्ट जनरेशन, इसके बाद वाली इसमें भी हमको अफेक्टेड इंडिविजुअल्स दिखेंगे। मतलब यहाँ हमको दिखता है कि किसी भी जनरेशन में जो डिसीज है वो स्किप नहीं हुआ है, मतलब हर जनरेशन में डिसीज दिखता है। इसी को हम कहते हैं कि ट्रेट शुड नॉट स्किप जनरेशन, मतलब अगर कोई ट्रेट या कोई कैरेक्टर ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप का है तो वो हर जनरेशन में खुद का इफेक्ट शो करेगा, दैट इज जनरेशन स्किप नहीं करेगा। दूसरी बात जो हमको यहाँ पे समझनी है वो ये कि अगर कोई ट्रेट या कोई कैरेक्टर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो इस केस में अगर अफेक्टेड पर्सन, सी दिस पॉइंट अगेन, फर्स्ट रीड इट, एन अफेक्टेड पर्सन married to a normal person should have approximately 50% of the offspring being affected। मतलब ये कि अगर कोई डिसीज या कोई ट्रेट ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप का है और ऐसे केस में कोई अफेक्टेड पर्सन चाहे मेल या फीमेल किसी नॉर्मल पर्सन से मैरी करती है तो उनको होने वाले बच्चों में से, मतलब उनकी प्रोजेनी में लगभग 50%, मतलब जैसे यहाँ 2 में से 1 कैसा होगा, अफेक्टेड, और बाकी 50% नॉर्मल। ये दूसरी चीज हमको कहाँ देखनी है, पेडिग्री में। मतलब हमको अगर पेडिग्री में दिख रहा है कि ट्रेट जो है वो जनरेशन स्किप नहीं कर रहा, और दूसरी बात हमको दिख रही है कि अफेक्टेड पर्सन का मैरिज अनअफेक्टेड पर्सन के साथ हुआ है और उनकी प्रोजेनी में 50% बच्चे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं है मेल और फीमेल का, कोई भी हो सकता है, अफेक्टेड है, तो हम थोड़ा बहुत कंफर्म करेंगे कि हमारी गिवन पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की है। एक और तीसरी चीज जो हम देख सकते हैं वो रही ये, क्या दिखता है हमें यहाँ पे कि यहाँ लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेट शुड बी क्लोज टू इक्वल अमॉन्ग्स द सेक्सेस। मतलब ऐसा नहीं होता कि ये वाला ट्रेट, मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट महिलाओं में ज्यादा दिखता है या पुरुषों में ज्यादा दिखता है, मतलब मेल्स में इसका ज्यादा इफेक्ट है या फीमेल्स में इसका ज्यादा इफेक्ट है, ऐसा नहीं होता। ऑटोसोमल होने की वजह से ये पर्टिकुलर डिसीज या पर्टिकुलर कैरेक्टर मेल और फीमेल में लगभग इक्वल मात्रा में, इक्वल क्वांटिटी में दिखाई देगा। मतलब अगर तुमको एक पूरी पेडिग्री में देखोगे तो तुमको दिखेगा कि लगभग मेल और फीमेल इक्वल मैनर में अफेक्टेड है। ऐसा नहीं होगा कि मेल ज्यादा अफेक्टेड है या फिर फीमेल ज्यादा अफेक्टेड है। उसका रीजन बड़ा सिंपल है कि ये ट्रेट किस तरह का है, ऑटोसोमल, और ऑटोसोमल ट्रेट होने के कारण ऑटोसोम्स मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं। तो ऐसा डिफरेंशिएशन, सेक्स वाला डिफरेंशिएशन यहाँ इस तरह के ट्रेट में कभी नहीं दिखेगा। यही पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, जो फिर से पढ़ो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेट शुड बी क्लोज टू इक्वल और इक्वल अमॉन्ग्स द सेक्सेस। दैट्स व्हाट वी शुड कंसीडर। These 3 basic points should be considered if we are provided with some pedigree and if we want to confirm that a given pedigree is of autosomal dominant trait, right? Now, if you see, there is another autosomal trait, that is autosomal recessive. Now, if we recall what is dominant and what is recessive, dominant gene is that which expresses itself in homozygous as well as heterozygous condition, right?
but recessive trait or recessive character is that which is expressed only in homozygous condition. मतलब अगर हम कोई जीन कंसीडर करें A और अगर ये जीन जो A जीन है वो किसी डिसीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है और वो अगर ऑटोसोम पे प्रेजेंट है तो ये इस कंडीशन में भी डिसीज कॉज करेगा और इस कंडीशन में भी डिसीज कॉज करेगा क्योंकि उसका नेचर डोमिनेंट है। लेकिन अगर कोई डिसीज इस अलील की वजह से होता है स्मॉल a तो सिर्फ एक ही जीनोटाइपिक कंडीशन ऐसी होगी स्मॉल a जिस केस में उस पर्सन को डिसीज होगा, राइट। ऐसे या ऐसे पर्सन को डिसीज होने का कोई चांस ही नहीं और ऐसे पर्सन को भी डिसीज नहीं होगा अगर ट्रेट ऑटोसोमल रेसेसिव टाइप का है क्योंकि रेसेसिव अलील सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में नहीं। तो जो रूल हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए अप्लाई किए थे पेडिग्री आइडेंटिफाई करने में वो रूल ऑटोसोमल रेसेसिव के लिए काम नहीं करेंगे। दैट्स द बेसिक थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो फिर हम कैसे पहचानें कि हमको जो पेडिग्री प्रोवाइड की गई है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट की है या ऑटोसोमल रेसेसिव की है? तो उसके लिए हमें ऑटोसोमल रेसेसिव इस पेडिग्री को पहचानने के लिए कौन से कैरेक्टर्स कंसीडर करने हैं ये पता होने चाहिए और वही हमको यहाँ पे दिखते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको दिखेगी, जो पहला पॉइंट ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के लिए था वो क्या था कि दिस ट्रेट डू नॉट स्किप जनरेशन। मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट हर जनरेशन में दिखेगा या ऑटोसोमल डोमिनेंट कोई डिसीज अगर है तो वो हर जनरेशन में दिखेगा। कम से कम कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जो अफेक्टेड है हर जनरेशन में। बट यहां हमने क्या देखते हैं यहाँ पे कि ट्रेट ऑफन स्किप्स जनरेशन। मतलब यहां पे हमको दिखेगा, मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के केस में हमें दिखेगा कि हर जनरेशन में डिसीज नहीं है। एक जनरेशन में है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में है, चौथे में नहीं है, ऐसे स्किप होता हुआ दिखेगा। जबकि डोमिनेंट वाला स्किप नहीं होता, हर जनरेशन में डेफिनेटली दिखता है। तो ये एक प्राइमरी डिफरेंस है जो हमको इस बात को डिफरेंशिएट करने में मदद करेगा कि ट्रेट डोमिनेंट है या रिसेसिव है, राइट। डोमिनेंट होगा तो स्किप नहीं करेगा, रिसेसिव है तो स्किप करेगा। उसके बाद दूसरी चीज जो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेट शुड बी क्लोज टू और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग्स द सेक्सेस। मतलब ये जो फैक्टर है ये कॉमन है, ऑटोसोमल रिसेसिव हो या ऑटोसोमल डोमिनेंट हो। अमॉन्ग्स द सेक्सेस मतलब मेल्स और फीमेल्स में इस तरह के ट्रेट का ऑकरेंस का चांस इक्वल होता है। मतलब मेल में भी उतना ही चांस है जितना फीमेल में है। वही बात, वही लॉजिक फिर से अप्लाई होता है कि ऑटोसोम्स मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन क्रोमोसोम्स है, इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स का कोई सवाल ही नहीं। उसके बाद तीसरी चीज जो हमको यहाँ दिखती है कि ट्रेट्स आर ऑफन फाउंड इन पेडिग्रीज विद consanguineous marriages. Now give the stress on the term consanguineous marriages. हमने कल पढ़ा था कि अगर कोई मैरिज मेल और फीमेल के बीच हो और उसमें वो मेल और फीमेल रिलेटेड हो या क्लोजली रिलेटेड हो तो ऐसे मैरिजेस को consanguineous marriages कहते हैं। तो हमारा यहाँ कहना यह है कि अगर कोई डिसीज या कोई ट्रेट किस तरह का है, ऑटोसोमल रेसेसिव, तो प्रोजेनी में इस तरह के डिसीज के दिखने का चांस तब ज्यादा बढ़ जाता है जब वो प्रोजेनी किसी ऐसे पेरेंट की हो या ऐसे कपल की हो जो कॉन्सैंग्यूनियसली मैरिड है, मतलब जिनका मैरिज क्लोज रिलेटिव्स वाली कंडीशन में हुआ है। ऐसे क्लोज रिलेटिव्स के बीच मैरिजेस अगर हो तो ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप के डिसऑर्डर्स या ट्रेट्स का दिखना बहुत आम बात होती है। दैट्स व्हाई इट इज रिटन कि ट्रेट्स आर ऑफन फाउंड इन पेडिग्रीज विद consanguineous marriages। इफ
यहाँ पे एक एडिशनल चीज हमें दिखती है कि इफ both the parents are affected, all of the children should be affected. मतलब कि अगर मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है किसी ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप के डिसीज से अफेक्टेड है, तो उनको होने वाले सभी बच्चों में वो डिसीज होगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको डिसीज नहीं है। गेट द थिंग्स वेरी क्लियर। सभी बच्चों में डिसीज तब दिखेगा जब दोनों ही पेरेंट्स अफेक्टेड है। इज इट ओके? दोनों पेरेंट अफेक्टेड होने का मतलब है कि दोनों ही पेरेंट्स में कंडीशन कैसी है? होमोजाइगस रिसेसिव। तो फिर उनके किसी भी बच्चे में डिसीज ना दिखने का कोई चांस ही नहीं है। जितने भी बच्चे होंगे सब उस डिसीज से अफेक्टेड होंगे, लेकिन कब? जब दोनों ही पेरेंट्स अफेक्टेड है। इज इट ओके? देन रिसेसिव होने के कारण आप एक बेसिक चीज को समझो। यहाँ पे हम ट्रेट या कैरेक्टर की बात कर रहे हैं जिसका नेचर कैसा है? रिसेसिव। तो आप एक कंडीशन यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप सोचो कि मेल पेरेंट का जीनोटाइप ऐसा है और फीमेल पेरेंट का जीनोटाइप भी ऐसा है, तो क्या ये मेल पेरेंट या ये फीमेल पेरेंट डिसीज होगी? नहीं। ये क्या होगी? कैरियर। और ये फीमेल भी क्या होगी? कैरियर, क्योंकि इनमें जीनोटाइपिक कंडीशन है रिसेसिव जिसमें हेटेरोजाइगस है। तो हेटेरोजाइगस स्टेट में रिसेसिव अलील एक्सप्रेस नहीं होता, जिस वजह से ना मेल पेरेंट अफेक्टेड है ना फीमेल पेरेंट अफेक्टेड है, सिर्फ वो कैरी कर रहे हैं। लेकिन जब ये गमेट्स बनेंगे तो इसमें दो तरह के गमेट्स बनेंगे और फीमेल में भी दो तरह के गमेट्स बनेंगे। अब अगर ये गमेट्स फ्यूज हुए तो प्रोजेनी मेल हो या फीमेल कैसी होगी? नॉर्मल। लेकिन अगर ये गमेट्स फ्यूज हुए तो प्रोजेनी कैसी होगी? अफेक्टेड। बराबर, मेल हो या फीमेल फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ट्रेट ऑटोसोमल है। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव नॉर्मल पेरेंट्स। कैरियर मतलब डिसीज नहीं, कैरियर मतलब जो अलील को कैरी कर रहे हैं लेकिन है वो नॉर्मल। ठीक है ना? और उनको होने वाला जो बच्चा है वो अफेक्टेड है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ट्रेट रिसेसिव टाइप का है, डोमिनेंट टाइप का नहीं। ठीक? तो ये एक चीज हमको और कंसीडर करनी है। अगर हम कोई पेडिग्री देख रहे हैं और हमको डाउट है कि वो किस तरह की है, ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप की, तो हमको ये चीज भी दिखेगी कि पेरेंट्स अनअफेक्टेड होंगे लेकिन प्रोजेनी अफेक्टेड होगी। ठीक? उसके बाद अगर यहाँ पे ऐसा हो, when a normal person is married to an affected individual, तो हमको ये टॉपिक पढ़ते टाइम एक चीज करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि हम जिस तरह से चीजें दिखाई जा रही है या है वैसा हम करके देखें। लाइक when a normal person से मेल, नॉर्मल को ऐसे शो करेंगे हम एम्प्टी स्क्वायर, इज मैरिड टू एन अफेक्टेड इंडिविजुअल, तो से फीमेल को हम अफेक्टेड शो करते हैं। ठीक? ऑल ऑफ द चिल्ड्रंस आर नॉर्मल। इनको होने वाले सभी बच्चे कैसे होंगे? चाहे मेल हो या फीमेल, कोई भी उनमें से अफेक्टेड नहीं होगा। हो सकता है कैरियर हो लेकिन अफेक्टेड नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल नॉर्मल पेरेंट इज होमोजाइगस। मतलब अगर मेल जो नॉर्मल है इसका जीनोटाइप ऐसा है और अफेक्टेड फीमेल का डेफिनेटली ऐसा है। ठीक है ना? तो इनको होने वाले सभी बच्चों में जीनोटाइप क्या आएगा? कैपिटल ए स्मॉल ए। मतलब जितने भी प्रोजेनीज है ना वो सब कैरियर्स होंगे लेकिन इनमें से डिसीज किसी को भी नहीं होगा। मतलब ये सब दिखने में नॉर्मल रहेंगे लेकिन ये अपनी अगली जनरेशन में डिसीज पास करने की एबिलिटी रखते हैं, बट ये खुद इनमें से किसी को भी डिसीज नहीं है। दैट्स व्हाट दिस पॉइंट सेज कि अगर नॉर्मल पेरेंट होमोजाइगस है, डोमिनेंट, और वो अगर किसी ऐसे पर्सन से मैरी करता है जो अफेक्टेड है, तो उनको होने वाली प्रोजेनी में कोई भी डिसीज या अफेक्टेड
नहीं होगा, सबके सब क्या होंगे, कैरियर्स होंगे। और हम कल भी बता चुके हैं कि कैरियर्स का मतलब अफेक्टेड नहीं होता। कैरियर्स का मतलब होता है ऐसे इंडिविजुअल्स जो अपने अंदर डिसीज कॉज करने वाला अलील कैरी करते हैं, जीन कैरी करते हैं, बट क्योंकि जीन रेसेसिव है तो उनमें वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा जब तक डोमिनेंट वाला अलील है, राइट। देन if a normal person is married to an affected individual and one or more of the children is affected, then approximately half of the children should be affected। मतलब अब ये सोचो, इस पॉइंट का मतलब क्या है, यहां समझो कि अगर ये जो नॉर्मल पेरेंट या नॉर्मल पेरेंट में हमने यहाँ पे लिया है फादर, अगर ये होमोजाइगस की जगह हेटेरोजाइगस है, तब क्या होगा, ये दो तरह के गमेट फॉर्म करेगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए, जबकि फीमेल जो अफेक्टेड है वो एक ही तरह का गमेट बनाएगी, स्मॉल ए कंटेनिंग। तो अब इनके जो भी बच्चे होंगे उनमें दो चांस होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये जो बच्चा होगा, मेल हो या फीमेल, ये कैसा होगा, अफेक्टेड, और ये होगा कैरियर लेकिन नॉर्मल, राइट। दैट्स द पॉइंट where what you can see here, if a normal person who is heterozygous, right, a normal person who is heterozygous married to an affected individual, then half of the children should be affected। दो में से एक, मतलब half of the children should be affected, ठीक। तो ये सारी चीजें हमको देखनी होंगी किसी प्रोवाइडेड पेडिग्री में, अगर हमको पहचानना है कि वो गिवन पेडिग्री किस तरह की है, ऑटोसोमल रेसेसिव की। तो हम एक बात यहाँ पे क्लियर करें तो बेहतर है कि सबसे पहले अगर हमको पहचानना है कि गिवन पेडिग्री ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड, तो हम क्या करेंगे, तो हमको सबसे पहले देखना है कि उस पूरी पेडिग्री में मेल्स और फीमेल्स इक्वल मैनर में या ऑलमोस्ट इक्वल मैनर में अफेक्टेड है या नहीं। अगर मेल और फीमेल लगभग इक्वल मैनर में अफेक्टेड है तो वो पेडिग्री डेफिनेटली ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड नहीं। अब फिर ऑटोसोमल वाला कंक्लूजन निकल गया, उसके बाद हमको पहचानना है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है कि डोमिनेंट है। तो हम सबसे पहले ये देखें कि जनरेशंस स्किप हो रही है कि जनरेशंस स्किप नहीं हो रही। ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर है तो जनरेशंस स्किप नहीं होंगी, अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो जनरेशंस स्किप होती हुई दिखेंगी। उसके बाद हमको बाकी सब रूल्स अप्लाई करके देखने पड़ेंगे, जैसे ये वाला कि अगर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है तो हमको दिख सकता है कि प्रोजेनी में डिसीज है लेकिन पेरेंट्स में से कोई भी अफेक्टेड नहीं है, राइट। या फिर एक पेरेंट अफेक्टेड है, दूसरा पेरेंट अनअफेक्टेड है, और फिर हमको दिखेगा कि उसकी प्रोजेनी में कोई भी अफेक्टेड नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें या ये सारे फैक्टर्स हम अप्लाई करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि पेडिग्री जो हमको प्रोवाइडेड है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रेट जो हमने पढ़ना है वो ऑटोसोमल के बाद आने वाला, मतलब सेक्स लिंक, जिसको हम एक्स लिंक भी कहते हैं। बट बिफोर दैट you just have a look at all the factors or all the rules that we need to apply for an autosomal recessive traits inheritance in a pedigree. Is it okay? And we will discuss rest of the traits and rules for them in next chapter, next video.